let's have a look at few experiments that are available online with respect to this NLP. Uh, so I was going to this website. So this is the research by Google. If you have a search for it, so यहाँ पे they have provided several. So this is the word association game powered by Google. And suppose so word association is nothing. So if you click on this one, so if you type some word over here, let's say library. So let me type some classroom or maybe something. It will give me the most associated word, sorry, with the highest probability. So library is associated with the classroom, right? So this is how word association games are available. Then visit this website, Google Experiments. Okay, in Google Experiments, you will find many experiments that are available and search for the experiments that are related to text. तो आपको बहुत सारे experiments यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि text से related हैं और some experiments are really really good if you have checked out this website. तो कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. तो ये एक्सपेरिमेंट जो था इसमें so this was created for disabled people. I don't know if voice is audible to you. Ma'am, it's not audible actually. Not audible? Yes, ma'am. Okay. Text, you can check the caption. Text caption is visible जो नीचे लिखा हुआ है. Yes, ma'am. ठीक है. तो एक्चुअली क्या था इस एक्सपेरिमेंट में कि ओके लेट्स हैव अ लुक. So you are getting the idea. So there are Look to Speak is an app where person is doing is he's just looking at, person is not able to speak and he's looking at the text and generating text from it, and communication is done via uh, his eye movement, right? So this is one of the experiment, and similarly you will find lots of interesting experiments. Just explore this website, Google Experiments, and search for good NLP related experiments. Whenever you explore this one, mm, okay, search for some good text related experiments and also do share that with me. ठीक है. तो इसी तरह इस वीडियो को if you want to see तो देख लेते हैं, लेकिन इसमें यही है कि एक ऐप है जिससे they are generating phrases with the
Nice, you know. Yes, ma'am. Good, no? So similarly, so many experiments are there. Check them out. Mm, have you checked this website already? Google Experiments? Anyone? Yes, ma'am. Okay. So tell me some good experiments. I'll search them. Ma'am, the game that you were playing in the starting, that's the Matrix. Hmm. Ma'am, that I played earlier also. Okay. Acha. And what is this blocks? I have not played this one. Ma'am, it's also related to something NLP, I think. I don't remember. I used it once. Okay. Type something related to one of the words below. Your clue can be as long as you like. Where to type? Ma'am, just type it. It will go to that place. Means where Chair. Mm, let's see if the AI understands which block you are talking about. Okay. table. Yeah, nice. So this is again word association. Yes, ma'am. Hmm. And any other experiments with this one? Google experiments. Uh, these are all because I've checked. Most of these are visual art and cultural AI experiments, augmented reality, voice experiments. Okay. I don't know how much of the NLP part is utilized in these. Okay, a voice controlled browser game where two players compete to be crowned the realist New Yorker. Okay, something related text. Explore this. Okay, and do let me know some good experiments. और कोई experiment बताओ. I will search. मैम ऐसे याद नहीं है लेकिन याद नहीं है. Okay, text related. Some experiments maybe. Between the lines, generate text between two sentences. So this is text generation. A fun way to play with speech and music. Okay, let's see क्या है इसमें. Okay, tutorial पढ़ना पड़ेगा अब इसके लिए. Hello, this word synth. Hmm. Okay, so background music is different in each and every box. Okay, more of a there is this one more experiment, Talk to Books, which has a similar text association involved. Talk to Books, I think. talk to books. You have opened that one. Can you share your screen? Ma'am, I was just reading out. Yeah, I will open it. Just a second. Okay.
Can you just give me permission to share my screen? Oh, okay. Yes. Yes, ma'am. Mm-hmm. Talk to Actually, books. Mm-hmm. I was reading here about this. This is complete blog post on how let you talk to books and test word association skills. Okay. Hmm. Actually means this associates the words that we are typing to the books which contain the similar words, I think. Good. Black means, yes, Question ma'am. answer. Kind of. A kind of question answer, yes, ma'am. Mm-hmm. They must have used something like BORT or something to just make associations from it. Hmm. हम इसको देख सकते हैं मतलब बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, अगर मतलब मैं ट्राई करूंगा इसको चेक करने का. Hmm. अच्छा एक्चुअली इसमें. हम्म. यस मैम. मैम मैंने एक और ऐप देखा था, मतलब वो उन्होंने क्या किया था, बर्ड को यूज करके मेडिकल डेटा पे ट्रेन किया था, तो वो अच्छा काफी अच्छा वो बन गया था, क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर लाइक प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस. मतलब मैं उस पर अच्छा. सोच रहा था कि उसका कुछ ऐसे मतलब चैटबॉट फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने का, मतलब मैंने सोचा था बनाने का, लेकिन फिर टाइम मिला नहीं ऐसा अभी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मैम अगर कुछ होगा तो. बर्ड बेस्ड फ्लटर एप्लीकेशन जो कि मेडिकल क्वेश्चन आंसरिंग करे. फॉर एग्जांपल लाइक वी कैन से हमें लाइक आई हैव अ माइल्ड हेडेक, सो मैम वो जो भी एसोसिएटेड वर्ड्स हों, मोस्ट एसोसिएटेड वर्ड्स, उसको मतलब मोस्ट एसोसिएटेड आंसर दे. उसका मैंने मॉडल देखा था मैम, मतलब किट पे पड़ा हुआ है, तो उसको ट्राई करने का सोचा था मतलब. गुड वन. मेडिकल के लिए तो दैट इज रियली मतलब हेल्पफुल. यस मैम, मतलब मैम वो किसी हैकाथॉन में भी मतलब डाल सकते हैं फिर उसका. तो कैसा मतलब डेटा था, किस टाइप का डेटा सेट था? मैम 70,000 स्टेटमेंट्स थे सिंपल. मेडिकल मतलब वो कलेक्टेड था डेटा फ्रॉम आई थिंक, मैं बता ही देता हूँ. ये है, नहीं ये नहीं है मैम, वो मैं दिखा दूंगा मैं बाद में आपको अगली क्लास में. एक्चुअली वो डेटा मैम लाइक स्टेटमेंट्स ही थे, और वो स्टेटमेंट्स लाइक वहाँ पे थे, क्या बोलते हैं, किसी मेडिकल लाइक हॉस्पिटल से कलेक्टेड थे. तो फॉर एग्जांपल अगर आप हेडेक की वो दोगे, तो मैं उसमें लाइक मोस्ट एसोसिएटेड वर्ड निकाल के देगा, उसके बाद फिर वो उससे लाइक उसमें उनने और भी सिम्टम्स, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा चैटबॉट की, व्हाट्स द नेक्स्ट सिम्टम जो आपको आया, तो मैं उससे और एसोसिएशन मतलब क्लियरिफाई करता जाता है, और वो लास्ट में जो आंसर आता है उसको एज अ रिजल्ट दे देता है. ओके. यस मैम. तो मैम मैं वो लास्ट नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा. मॉडल काफी अच्छा है, मतलब ट्रेन कर रखा है किसी बंदे, लेकिन वो काफी बड़ा है, तो उसको मतलब वो TF लाइट से कन्वर्ट करके फ्लटर एप्लीकेशन में डालना एक इशू है, तो वही देखना है बस. ओके. श्योर डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में आप बताना. बिल्कुल ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए. यस. सो इसका मतलब ये है कि वो जो आंसर देता है उससे एक वो नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट करता है और फिर उससे एक आंसर इस टाइप से, है ना? यस मैम, मतलब मैम उसको 3 चीजें चाहिए होती हैं. सिम्टम चाहिए होता है, मेडिकेशन चाहिए होती है कि आप जो मेडिकेशन ले रहे हो ऑलरेडी, और एक और कोई चीज होती है, मतलब मेरे को याद नहीं है, काफी टाइम पहले देखा था. तो वो जब तीनों डेटा कलेक्ट कर लेता है तो मोस्ट सूटेबल आंसर वो आपको देता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने बोला कि आई एम टेकिंग एस्पिरिन एंड आई हैव अ माइल्ड हेडेक, तो वो बोलेगा यू हैव दिस माइग्रेन एंड यू शुड टेक 8 ounces ऑफ वाटर, ऐसे आंसर देता है मतलब वो. हम्म. यस. ओके.
नाइस। ओके, और कोई शेयर करना एक्सपेरिमेंट्स हो अच्छे, तो इसमें भी गूगल एक्सपेरिमेंट्स में भी कुछ अच्छा मिले या कहीं और भी? स्टैनफोर्ड पे मिलना चाहिए, क्योंकि स्टैनफोर्ड एनएलपी तो पूरा एक इन्होंने हर चीज़ डेवलप की ही है, तो वहाँ पे मिलना यस चाहिए। मैम, स्टैनफोर्ड पे मैंने भी देखा था मैम, उसके डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं, मतलब डीप लर्निंग में भी उन्होंने काफी एनएलपी वाले प्रोजेक्ट कर रखे हैं। उनके जो स्टैनफोर्ड पास एनएलपी के लिए तो बहुत ही मैम जो पास प्रोजेक्ट्स हैं काफी अच्छे हैं मतलब। हमें एक माइक्रोसॉफ्ट का भी पेपर आया, उसमें दे आर कॉलिंग इट डिकोडिंग एनहांस BERT विद डिसएंटैंगल्ड अटेंशन। ओके। वो काफ़ी like they are saying कि it should give better performance than BERT even because they have disentangled their attention। थोड़ा weird सा पेपर था, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया वैसे तो, बट लाइक इंटरेस्टिंग सा है। हम लाइक जो रॉबर्टा मॉडल और BERT मॉडल को कंबाइन करके ओके। अच्छा, एक क्या नाम बताया आपने पेपर का? और आइदर शेयर द लिंक अगर मिलता है तो। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ चैट में। और एक अभी रिसेंटली ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल भी आया है, कल परसों ही मैं देख रही थी। आई डोंट नो, मुझे अभी इसका नाम याद नहीं है। सब DBERT, decoding enhanced BERT with disentangled attention. Okay. So this is for what kind of texts? कोई particular text नहीं है. Okay. Facebook AI में आया है, that is gene sequences classification. एक मिनट। इस पेपर का मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है। दैट इज बेस्ड ऑन मास लैंग्वेज मॉडलिंग, यही वाला है। हम वो लेकिन फिर इमेजेस के लिए नहीं हो गया ट्रांसफॉर्मर मॉडल? लेट मी चेक। इस पे भी तो लगता है, टेक्स्ट पे भी। जीन सीक्वेंस वाला, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या यूज़ किया है। ये तो कोड है। ये मॉडिफिकेशन है। कौन सी डेट का है ये?
मॉडल्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन आवर पेपर 2019 का है ये तो ओल्ड वर्जन है। फेसबुक एआई ने एक रिसेंट डेवलप किया है। दैट इज़ फॉर जीन सीक्वेंस, लेकिन उसमें ये टेक्स्ट नहीं है ऑल्दो, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मर्स का मॉडिफिकेशन है वो। अब पेपर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कौन सा पेपर था। ट्रांसफॉर्मर्स का मैम जो मैं पेपर की बात कर रहा था मैम वो मेरे को मिल गया मैम, मैं दिखा सकता हूँ अगर। हाँ बताओ। ये DBERTA है, दिस इज फॉर this is that model that I'm talking about, BioBERT, a pre-trained biomedical language representation model for biomedical text mining. अच्छा, ये टेक्स्ट डेटा पे। हाँ, सेंटेंसेस जो आप कह रहे थे, क्वेश्चन आंसरिंग Yes, काइंड ma'am. ऑफ थिंग। ओके Yes, ओके। मैम। मतलब इसका मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, 1 महीना हो गया वो लगभग। उस टाइम पे बहुत सही था, मतलब मैं पहले ये सोचा था प्रोजेक्ट यही बनाने का, इसी को मतलब कुछ करने का, लेकिन मैम फिर ये काफी ज्यादा डेप्थ में हो जाता ओके। मेन चीज। ये भी इनने भी मैम लास्टली ट्रांसफॉर्मर्स फॉर बायोमेडिकल टेक्स्ट माइनिंग व्हिच इज अ रिलीज पेपर है। इन्होंने सबसे कंपैरिजन दिखाया है सारे मॉडल से। नो मैम, इनने बेसिकली कंपैरिजन नहीं दिखाया, इनने ट्रेन करके उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इनका जो कोलैब फाइल है ना उसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है सही से। मतलब वो 10 आंसर सेलेक्ट करता है मैम, 10 आंसर सेलेक्ट कर लेता है जो भी अपन जैसे भी अपनी क्वेरी डालते हैं ना उसमें क्वेश्चन में, तो वो 10 तो उसी के ऊपर बिल्ड करने का कुछ सोच रहा था मैम स्टार्टिंग में। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट सेम में। उसमें भी हमने ऐसा ही कुछ यूज़ किया था कि एपीआई यूज़ की थी फॉर इन्फ्रेंस की, कौन सा लाइक डिजीज़ इन्फ्रेंस के लिए यूजिंग क्वेश्चन एंड आंसर, वो एपीआई भी शायद इसी पे बेस्ड थी, लाइक समथिंग लाइक दिस ओनली। यस मैम, मतलब इसमें मैम जैसे 10 वो जब आंसर सेलेक्ट करता है तो वो काफी सारे आंसर्स देता है, तो मैम मैं वही सोचा था कि उसी कोलैब फाइल को एक्सटेंड करके एक पर्टिकुलर आंसर, मतलब उसको और डेटा प्रोवाइड करके एक और आंसर, मतलब जो स्पेसिफिक आंसर हो जो टेक्स्ट चैट बॉट दे सके वो आंसर अपन निकाल सकते हैं ऐसा कुछ। हाँ, प्रोबेबिलिटी कुछ यूज करके। इसमें प्रोबेबिलिटी या और डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब एक शॉट में एक क्वेरी में मतलब कुछ ही डेटा जा पाता है, लाइक स्पेसिफिकली जैसे कि सिम्टम जा सकते हैं, तो हम नेक्स्ट मेडिकेशन पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट मतलब मैम उसका कुछ करना मतलब थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद कोलैब फाइल हो जाएगी तो फिर उसके बाद इजी रहेगा आई थिंक मॉडल बनाने के बाद। ये अच्छी चीज है। ओके, गुड। ठीक है, तो आप लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स आप लोग बना रहे हो उसका ट्राई करना, जो भी आपने सिलेक्ट किया है कि उसका कुछ प्रोडक्टिव निकल सके, उसमें से निकल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट एम भी नहीं है उसका, बट स्टिल उसको देखना कि आपका अमित, तो आपका तो सीक्वेंस पे है ना, सीक्वेंस टॉक्सिसिटी। यस मैम, अभी स्टार्टिंग में सीक्वेंस मॉडल्स यूज किए हैं। फ्यूचर मतलब मैम फिर बर्ट और उस पे जाने का सोचा था मैंने। ठीक है, उसकी देख लेना अगर उसमें स्कोप हो इस तरह का कुछ करने का। वैसे वो तो बिल्कुल अलग ही हो गया आपका, ये अलग है बिल्कुल। तो ओके, ठीक है, तो यही है, गूगल एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लोर करो, एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करो एनएलपी के। यस मैम। आज के लिए तो इतना ही था क्लास में। एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट्स, एनीथिंग अभी तक कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वी कैन रिवाइज दैट वन दोबारा से। एनीथिंग?
मैम अटेंशन अभी बाकी है ना पढ़ाना आपको? हाँ, अटेंशन बाकी है। लेट मी शेयर द सिलेबस। देखो सिलेबस अगर है यहाँ पे, ये है। अभी मॉड्यूल 1 2 3 हो चुका है और मॉड्यूल 4 में है अटेंशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग। तो ये 2 टॉपिक्स बचे हैं। मशीन ट्रांसलेशन आपको आता है, स्टैटिस्टिकल न्यूरल वाला, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे वेंसडे को, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक में हम अटेंशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग पे जंप करेंगे। अटेंशन अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मर्स भी है। तो ठीक है, तो मॉड्यूल 5 में जो है थोड़ा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो क्योंकि आपके मिड टर्म्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मॉड्यूल 4 में ज़्यादा हम मतलब मॉड्यूल 4 तक ही ट्राई करेंगे, इतना ही हो पाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिड टर्म्स के बाद वील स्टार्ट विद दीज मॉड्यूल 5 और डिटेल्स में सारे मॉडल्स, ठीक है। तो अप टिल मॉड्यूल 3 सिलेबस में आपके रहेगा मिड टर्म में यहाँ तक, एक्सेल नेट तक। तो अभी जो चल रहा है क्लास में, लाइक मशीन ट्रांसलेशन, सीक्वेंस टू सीक्वेंस जो लास्ट टाइम हुआ था, एंड अटेंशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग बॉट, ये सारा पार्ट आपका मिड टर्म के बाद वाले पोर्शन में आएगा, ठीक है। तो अटेंशन अभी बताना है। तो वेंसडेज लेक्चर में हम वील फिनिश विद स्टैटिस्टिकल एंड न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, और उसके बाद अपकमिंग वीक में व्हेन एवर इट इज़, सो इट्स ऑन 8th। सो 8th और 9th को तो आपका इनवाइटेड टॉक है, 9th इज इनवाइटेड टॉक एंड 8th को आपका लैब वाला पोर्शन रहेगा क्योंकि 9th को टॉक है। 10th को विल डू अटेंशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके मिड टर्म्स भी होंगे, तो लेट्स सी अटेंशन अगर पहले हो पाता है, नहीं तो मिड टर्म्स के बाद। ओके मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।